Good morning, student. I am Sanjit Kumar Singh, your science teacher, and I give the video from chapter 2, class 7. So, this is the subject science, class 7, chapter 2nd, animal nutrition. Animal nutrition. After the completion of first chapter, plant nutrition, in plant nutrition, we know mostly green plants are autotrophic in nature, but except green plants and animals, both are heterotrophic in nature because they cannot make their own food by the process of photosynthesis. So they depend on food for other organisms, other animals or plants, and obtain its own food by heterotrophic modes of nutrition. Now in this chapter, animal nutrition, we discuss animal nutrition. Animal nutrition, first of all we define animal nutrition. Animal nutrition, the process by which animal obtain or taking food from outside to inside the body, and it is used or utilized within the body cells called animal nutrition. एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में एनिमल बाहर से भोजन प्राप्त करता है और उस भोजन को अपने शरीर के भीतर, अपने सेल के भीतर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए यूटिलाइज्ड करता है, उसी प्रोसेस को एनिमल न्यूट्रिशन कहा जाता है. एनिमल न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड in 5 steps, or in animal nutrition there are 5 steps. These steps are: in animal process of nutrition is completed in 5 steps. These steps are: पहला ingestion, दूसरा digestion, तीसरा absorption, चौथा assimilation, and last fifth egestion. एनिमल न्यूट्रिशन के में मेनली 5 स्टेप्स होते हैं और एनिमल न्यूट्रिशन 5 अवस्थाओं में, 5 चरणों में कंप्लीट होता है. पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड लास्ट फिफ्थ इज egestion. So after the getting 5 steps, we define all these steps one by one. So first of all we define process of ingestion. The process
by which animal taking food from outside to inside the body called ingestion. वो प्रोसेस, वो तरीका, वो विधि जिस तरीके से एनिमल्स भोजन को शरीर के बाहर से शरीर के भीतर में लेता है, उसी प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा डाइजेशन। द ब्रोकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स water in soluble food substance into simplest water soluble substance with the helps of different types of enzymes known as digestion। वो प्रोसेस, वो तरीका जिस तरीके से एनिमल्स उस अंदर लिए गए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है, बदल देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। नाउ थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। The process by which simplest water soluble form of food substance mixed or absorbed from intestinal wall into blood stream called absorption। Fourth one is assimilation। Fourth one is assimilation। the simplest form of water soluble substance are used by body cells from blood stream to obtain energy from them
called assimilation, and last one is egestion. The undigested or unused food substance are expelled out from body inside to outside, called egestion. These are the 5 steps by which animal nutrition are completed within the body. इस 5 अवस्थाओं के द्वारा एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी को एनिमल न्यूट्रिशन के अवस्थाओं के बारे में हिंदी में जानकारी देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन 5 अवस्थाओं में होता है, नेमली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन. Ingestion, the food substance taking from outside to inside the body. वो प्रोसेस, वो विधि जिस प्रोसेस के सहायता से भोजन के सब्सटेंस बाहर से शरीर के भीतर लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं. आफ्टर गेटिंग फूड मटेरियल outside to inside the body, it is broken down by our body organs into simplest form. भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को सिंपलर फॉर्म में बदलना, भोजन के वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में बदलना विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन्स और एंजाइम्स की सहायता से, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है. जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है. वो जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो बॉडी के विभिन्न ऑर्गेन्स के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया गया, उन सिंपलर सब्सटेंस का बॉडी के इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में मिलना, उसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन. ब्लड स्ट्रीम में सिंपलेस्ट फॉर्म में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स मिल जाता है, उस सिंपलेस्ट फॉर्म का ब्लड से शरीर के विभिन्न सेल में पहुंचना, सेल द्वारा उसे लेना और उसे एनर्जी प्राप्त कर लेना, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है. और इस दरमियान, इस पूरे चक्र में, अवस्थाओं में कुछ ऐसे भी फूड सब्सटेंस होते हैं जो अनडाइजेस्टेड रहता है, जो हमारे शरीर के द्वारा पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. तो वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, अनयूज्ड फूड मटेरियल्स, जिसका हमारे शरीर को अब कोई काम नहीं है, वो एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो अब हमारे शरीर में यदि रुकेगा तो उसको, हमारे शरीर को डिफरेंट तरीके से हानि पहुंचाएगा, डिजीज कॉज्ड करेगा. सो आफ्टर एसिमिलेशन, आवर बॉडी एक्सपेल्ड आउट दीज सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. अनडाइजेस्टेड, अनवांटेड मटेरियल्स, अनयूज्ड मटेरियल्स, जिसका हमारे बॉडी को कोई काम नहीं रह जाता है, वो सब्सटेंस शरीर के भीतर से शरीर के बाहर निकल जाना, इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं. यह प्रोसेस इजेशन कहलाता है. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो.